Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 9.8 part 1. Let's begin. See, in this lecture we will talk about the epidemiology anthropology, and in the next lecture we'll cover the rest of the part, right? And you might think कि एक टॉपिक के लिए एक पूरा लेक्चर लगाने की क्या ज़रूरत है. सो बेसिकली epidemiology anthropology के अंदर we have to study like lot many things, not just the definition or the concept. It's way beyond that. So we'll study the concept and the relation of epidemiology with the anthropology, and then आप अगर एक बार epidemiology को समझ गए, उसके anthropology के साथ relationship को समझ गए, then at the end we'll summarize that with what is epidemiological anthropology, right? Then we'll study about various branches of epidemiology. Then evolution कैसे हुआ, like what the kind of an epidemiology that we see today that you call as the modern epidemiology, ये कहाँ से निकल के आया, इसका background क्या था, थोड़ा सा historical facts भी हम देख लेंगे. Then objective and studies of approaches, किन किन तरह से studies की जाती है, क्या क्या methods होते हैं, we'll look at that like as a kind of an overview itself. Then at the end epidemiological transition क्या होता है, इसका demographic transition के साथ भी हम थोड़ा बहुत contrast करके देखेंगे, like how both of them are related or different from each other. And in between value additions तो आपके होते ही रहेंगे. In fact like most of the part are like itself value addition, right? So शुरू करते हैं. First of all, see this picture. In this picture, it's written community well-being. That means एक community की well-being किन किन चीज़ों के ऊपर depend कर सकती है. You can even think in your mind. You can pause the lecture and think in your mind कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे हमारी well-being depend करती है. It can be so many things. It can be education, जहाँ कहा जा सकता है कि even the mother's education helps in a better life for the child that she is going to bear. अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट किस तरीके की है, आपका सोशल कनेक्टेडनेस किस तरीके का है, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज कैसी है, कल्चर कैसा है, जेंडर, एथनिसिटी, हाउसिंग, बिल्ड एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट या वर्किंग कंडीशंस भी कैसे, बिकॉज दे आर मेनी इंडस्ट्रीज, एस्बेस्टोस हो गए आपके, वहीं कोल माइन, कोल फील्ड्स, ये काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट डालते हैं जो वहाँ पे लोग काम करते हैं उनके ऊपर. Of course income is one of the very important factor as well, because जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि health infrastructure, public health infrastructure काफ़ी अच्छा नहीं होता है, people has to be dependent upon the private one, right? And it becomes very correlative कि आप की spending capacity कितनी है, आप उतनी अच्छी facilities avail कर पाएंगे, and ultimately that is going to have an impact on the well-being, right? So what we are going to study in the epidemiological like study or epidemiological anthropology, it has a very wider scope. Wider scope क्यों? Because epidemiology कहीं ना कहीं आपको अगर पता हो like what does it mean, so ये disease से कहीं ना कहीं related है, right? But इसका scope इतना बड़ा है, disease से तो आपके medical professionals भी related होते हैं, right? But they are not rather concerned with कि वो disease कहाँ से आया, क्या क्या situations थे, किस तरह से वो फैला, और उसके आगे किस तरह के रिएक्ट करने के चांसेस है. ऑफ कोर्स इट इज़ देयर बट इन सम अदर सेंस, राइट? वो मेडिकली अपने तरीके से सोचते हैं, बट epidemiology कुछ अलग तरीके से और अलग अलग फैक्टर्स को भी कंसीडर करता है, चाहे वो आपके सोशल फैक्टर हो, कल्चरल हो, एज यू कैन सी दे आर लाइक वेरियस थिंग्स, राइट? अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें, लाइक दी COVID-19 पैंडमिक, लाइक इट गिव्स यू लॉट मेनी एग्जाम्पल्स टू कोट इन द एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ. आपने देखा होगा कि इपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ करी गई हैं COVID-19 को लेके भी बहुत सारी, टू फाइंड इट आउट कि अगर ये वायरस वुहान से आया तो क्या कंडीशंस थे, व्हाट वर द सोशल और द कल्चरल नॉर्म्स आउट देयर, एंड बाकी की जो आपके सार्क COVs, पहले भी MERS, ये जो जितने भी टाइप के वायरसेस पहले आए थे उनका क्या इम्पैक्ट रहा था, उनको स्टडी करके भी आगे COVID-19 कैसे रिएक्ट कर सकता है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं. तो आई होप दिस बिल्ड अप्स द बेसिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें सबसे पहले, सो योर epidemiological study or epidemiology, it confers to the determination, manifestation and distribution of certain diseases and disorder in human communities. So in simple words, ये देखता है, ये डिटरमाइन करना चाहता है
और जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिजीजेस की वो देखना चाहता है इन लाइक वेरियस डिसऑर्डर्स और डिजीजेस दैट इज प्रिवेलिंग across the globe. And the spectrum of disease causing factors ranges from genetic to environment, right? And the socio-cultural background also exhibit an influential role, जो कि हमने अभी अभी देखा कि आपके social factor भी होते हैं, environmental factors भी होते हैं, और genetic और ये सारी चीज़ें तो of course हो ही सकती हैं. तो मोस्टली जब भी आप इपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप दो टाइप के डिजीजेस को स्टडी करते हैं. वन कैन बी इन्फेक्शियस एंड अनदर कैन बी नॉन इन्फेक्शियस. मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जितने भी डिजीजेज है यू कुड बी एबल टू क्लासीफाई इन दीज टू पैरामीटर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से भी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, और मैल न्यूट्रिशन जिसको आप बोल सकते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे डिजीजेज होते हैं. that can be also one of the point of consideration under the epidemiology, right? And this field of epidemiology is highly interdisciplinary. That means like anthropology जब हम बात करते हैं तो anthropology is considered to be like a subject that gives you an opportunity to study like various other disciplines, right? उनसे उनका relation देख सकते हैं, मतलब it does not stays in isolation. सेम गोज विथ योर एपिडेमियोलॉजी एज वेल. इसके अंदर आप जो भी साइंस के अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं वो तो देखते ही है, लाइक योर बायोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी. साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसिप्लिन दैट यू कैन स्टडी इन कोरिलेशन विद द एपिडेमियोलॉजी. उसी के साथ साथ साइकोलॉजी, सोशलॉजी, बिहेवियरल साइंस और भी अदर सोशल साइंसेज हैं जो आप इनके कंटेक्स्ट में पढ़ सकते हैं. मतलब अगेन एपिडेमियोलॉजी इज लाइक एंथ्रोपोलॉजी जिसको आप आइसोलेशन में देख के नहीं चलते, यू टेक इट अलॉन्ग विद वेरियस अदर सब्जेक्ट्स, राइट? And it also consider not only the man's physical environment but also the socio cultural and the psychological circumstances. So ये तो हमने यहाँ पे भी बात करी है कि ये अपने आप में बहुत सारी फैक्टर्स को कंसीडर इन करता है. नाउ अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें दैट हाउ यू कैन कोट फ्यू एग्जाम्पल्स टू शो लाइक व्हाट द एपिडेमियोलॉजी डज. सो फॉर इंस्टेंस environmental component of causations lies in the lung cancer and degenerative arterial diseases as in tuberculosis and smallpoxes. That means कि अगर आप लंग कैंसर की भी बात करें तो लंग कैंसर कैसे होता है और लंग कैंसर का इलाज, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट? अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो दे कैन टेल यू कि लंग कैंसर का इलाज आपको कैसे करना है और कैसे हुआ उस पर उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है, क्या करना है आगे, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट. बट अगर आप एपिडेमियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे ऑल्सो ट्राई एंड फाइंड इट आउट कि लंग कैंसर्स के कारण क्या हो सकते हैं, सो दैट दे कैन हेल्प इन फाइंडिंग आउट टू बेसिकली eliminate that reason so that the well-being of the people could be maintained. अब यहाँ पे आप देखिए लंग कैंसर के केस में क्या अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं. एक सिगरेट स्मोकिंग तो लाइक इट्स द यूनिवर्सल रीज़न जो लंग कैंसर के लिए हो सकता है. दूसरा आपका रेडॉन भी एक कारण हो सकता है, और रेडॉन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इवन इन दी हाउसेज दैट वी लिव देयर ऑल्सो यू कैन फाइंड रेडॉन. और एस्बेस्टॉस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है फॉर द लंग कैंसर, जिसलिए आपको पता हो कि एस्बेस्टॉस इंडस्ट्रीज़ में भी काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको भी लंग कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है. देन एनवायरमेंटल टोबैको एक्सपोजर, दैट मीन्स इट्स जस्ट नॉट कि जो सिगरेट पी रहा है उसी को नुकसान होगा, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक द पीपल इन एंड अराउंड यू, राइट? तभी आपने कुछ एड्स देखे होंगे जहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग को लेके वो बात करते हैं, देन टेल यू कि अगर आपको अपने परिवार से प्यार है तो आप स्मोकिंग करना छोड़ दे, राइट? बिकॉज आप तो सिगरेट पी रहे हो, साथ साथ आसपास के लोगों को बिना पिए भी पिला रहे हो. देन जेनेटिक्स भी रीज़न हो सकते हैं, और भी अदर लंग डिजीजेस की वजह से आपको लंग कैंसर हो सकता है, और कुछ रेडिएशंस भी हैं जिसके कारण से आपको लंग कैंसर हो सकता है. तो दे ट्राई एंड एनालाइज लाइक वेरियस अदर फैक्टर्स एंड द रीज़न दैट कुड अकाउंट फॉर द लंग कैंसर. सो दिस इज व्हाट यू कुड basically imagine the kind of an scope that the epidemiology could have. Here you can summarize ki what do the epidemiologists study basically. So they study the various things, disease के causes को तो study करते ही करते हैं, उस disease का impact क्या होगा, they also study that. They study the socio-economic impact of the disease as well, and they study the neighborhood, state,
एंड कंट्री और उनका ग्लोबल स्प्रेड प्रेजेंस, ये सारी चीज़ें, फ्रीक्वेंसी और पैटर्न किस तरीके का, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो दीज आर लाइक 5 points that you can write to summarize that what do the epidemiologist study. Now coming to the definition of the epidemiology. See, यहाँ पे हम epidemiology की definition की बात कर रहे हैं. epidemiological anthropology की definition हम थोड़ी देर बाद देखेंगे. अगर आप बस epidemiology की बात करें, like the proper definition of it, तो it is the study of the incidences, distribution and spread of disease in a population. So basically summarizing all these things, you can write it in one line, right? And this epidemiological approaches analyzes how the culture and the environment interact to create a condition for the health and disease. Suppose like in China's wet market, that comes along with the virus that has certain impact on the presence of the COVID-19, right? Because ये दोनों factors मिले तभी जाके COVID-19 आया. अगर ये कुछ और तरीका होता, अगर उनका वेट मार्केट, मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि ये चाइना से था या कहाँ से था, बट या अगर चाइना के वेट मार्केट से निकल के आया है कोविड-19, तो देयर आर सर्टन कंडीशंस दैट कुड हैव बीन टेकन केयर. अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाती या लाइव एनिमल्स वहाँ पे नहीं होते, तो शायद दीज ऑल थिंग्स कुड बी अवॉइडेड, right? And if you're seeing this lecture like after so long, और उस टाइम तक पता चल गया हो that what is the main reason about the COVID-19, then you can definitely skip this example, right? So usage क्या क्या हो सकते हैं of the epidemiology? तो यूजेस हो सकते हैं आपके assessing community health, completing the clinical picture, making individual decisions and searching for the causes. कुछ examples famous studies है of the epidemiology that you can write, और वैसे अगर आप बहुत सारे सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, राइट? और कोविड-19 के लिए भी जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की गई हैं, दैट इज़ लाइक अगेन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल तो है ही है. और ये क्या हेल्प करेगा कि एक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स फ्रेम करने में मदद कर सकता है, लाइक हाउ द गवर्नमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस. लाइक अभी तक तो सबको पता है देयर इज़ अ सेकेंड वेव, देयर इज़ अ थर्ड वेव, देयर माइट बी लाइक फोर्थ वेव एज वेल. So the government or the civil societies and the citizen itself, they can be very well be prepared, right? Because they know this is the pattern this COVID-19 is going to be following, right? अब मैं बहुत ज़्यादा COVID-19 इस लेक्चर में कर सकती हूँ, so please pardon with that, because वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अभी that fits in all, और आपको समझने के लिए भी आसान रहेगा. Now अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द epidemiology एंड द एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज हमें अल्टीमेटली पढ़ना तो यही है ना, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है. अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हमने शुरुआत में ही देख लिया. लाइक द एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी ऑल्सो हैज़ लाइक वेरियस इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, राइट? वो बहुत सारी चीज़ों को इनकलकेट करके एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. सो एपिडेमियोलॉजी आपके हु, वेयर, व्हेन, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं. अब डिजीज़ है तो कौन सी डिजीज़ है, कहाँ से आई है वो, कैसी है वो, कैसी होगी वो, मतलब इन सारी चीज़ों पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है. वहीं अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में तो बहुत सारे सब ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे. उनमें से अगर आप मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, ये भी बायोकल्चरल डिसिप्लिन है that studies the biological aspect and the socio-cultural component influencing the health और disease process, right? यही तो चीज़ें करता है आपकी मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की. कोई भी एक सर्टन डिजीज़ है तो वो क्यों है, उसका क्या रिलेशन है, क्या वो सर्टन एथनिक ग्रुप में है या वो सर्टन सोशो कल्चरल नॉर्म्स की वजह से है. तो ये सारी चीज़ें आप मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी करते हो, राइट? एंड द डिसिप्लिन्स गोज डीपर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंटरैक्शन ऑफ बोथ the above mentioned aspect, taking the account the individual experience. Anthropologists look for the why of the disease, right? So who, when and where, ये तो सारी चीज़ें आपके एपिडेमियोलॉजी देखती है, और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी साथ साथ वाई पे बहुत ज़्यादा फोकस होती है, ठीक है? And therefore both these disciplines try to understand the distribution and the causal factor of the diseases with regard to the human population. तो you can think it as कि स्पाइडरमैन और सुपरमैन दोनों ही मिल गए, they can produce some very good results, right? तो उसी तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ हो रही है, लाइक बोथ आर वर्किंग फॉर दी वेल बीइंग और फॉर दी वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन, राइट? वो दोनों ही ह्यूमन को हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से, और अगर दोनों साथ मिल जाते हैं तो it can do wonders, right? And also since the epidemiology has direct correlations with the other science subjects like biology, physiology,
सो इनकी जो वे ऑफ स्टडी होती है, जो वे ऑफ इनका डिज़ाइंस होता है, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिज़ाइंस, they can provide with some very good insights to the anthropologist, and that's how like these two are very much complementary to each other, that you can say, right? So अगर आप यहाँ पे देखिए, this is the epidemiology and this is the anthropology. अब anthropology ने ये study किया that what is the relationship between the culture and the illness burden, right? अब आप इस चीज़ को एग्जाम्पल अगेन कोविड-19 का ही ले ले, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है कि कल्चर और इलनेस बर्डन में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि वेट मार्केट में और इस तरीके के वायरसेस, बिकॉज यू विल सी कि चाइना में हर बार कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई वायरस देखने को मिल जाएगा, तो इट माइट हैव टू बी समथिंग रिलेटेड टू देयर कल्चर इटसेल्फ, देयर फूड हैबिट्स, राइट? वहीं आपके जो एपिडेमियोलॉजी है ये मेज़र करेगी कि डिजीज़ बर्डन कितना है, यानी कि स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, कौन सी पॉपुलेशन को वो हो रहा है, और उस पॉपुलेशन में भी स्प्रेड का एक्सटेंट कितना है, ये सारी चीज़ें, रिस्क फैक्टर क्या है, आउटकम्स क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजी के अंदर स्टडी होगी। और इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाता है योर कल्चरल एपिडेमियोलॉजी, राइट? एंड दिस गिव्स द डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ इलनेस एक्सपीरियंस, मीनिंग एंड बिहेवियर एंड द कल्चरल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑकरेंस, कोर्सेज एंड द आउटकम। अब आप इसको कल्चरल एपिडेमियोलॉजी बोल सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी रेफर कर सकते हैं, लाइक बोथ विल बी करेक्ट इन इटसेल्फ, राइट? So this is how these two disciplines are interlinked or complementary to each other. If not like interlinked है ना, तो मतलब it won't be like entirely correct, but yes, they are complementary to each other. So in the definition you can write the epidemiological anthropology क्या है? It's a subdivision of anthropology that is concerned with the study of distribution of various diseases and the determinant of diseases in various societies. So that's a very simple one, right? और एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपके एपिडेमिक डिजीज के केस में, सो लाइक कोविड-19 वाज वंस एन एपिडेमिक डिजीजेस, अगर वो एक सर्टन लोकेशन तक ही सीमित रहता, बिकॉज एपिडेमिक डिजीजेस कौन से होते हैं? जो बहुत फास्टली स्प्रेड कर रहे होते हैं, लोगों में इन्फेक्शन फैलाते हैं, दैट यू कॉल द एपिडेमिक, राइट? बट वंस इट क्रॉसेस द कॉन्टिनेंट एंड द कंट्रीज, सो वो पेंडेमिक बन जाता है, लाइक द कोविड-19 इज राइट नाउ, राइट? सो जब एपिडेमिक्स डिजीज़ की अगर हम बात करें, तो एपिडेमिक डिजीज़ तो बहुत कंटेजियस होती है, बहुत जल्दी फैलती है, तो वो किस तरीके से फैलेगी, क्या पैटर्न फॉलो करेगी, यही सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज़ दी क्रक्स जो ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, तो वही सारी चीज़ें हैं। फॉर मेकिंग नोट्स यू कैन यूटिलाइज ऑल दीज थिंग्स, राइट? देन ब्रांचेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी की हम बात करें, तो माइंड वन थिंग, जब हम एपिडेमियोलॉजी के ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये नहीं बोल रहे दैट दीज आर द ब्रांचेस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दीज आर ब्रांचेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, राइट? अब इसमें अगर आप चाहें तो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजी के एस्पेक्ट्स को लगा के देख सकते हैं। सो इट्स बेटर दैट यू हैव एटलीस्ट सम आइडिया कि कैसे ब्रांचेस होते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस हो सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के, एंड माइंड इट लाइक इट्स नॉट अ वेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट। ऐसा नहीं कि यही ब्रांचेस होंगे और हो ही नहीं सकते, इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके के रिसर्च किए जाते हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी कितनी प्रोग्रेस कर रही है, वो अलग अलग तरीके के और भी डोमेन्स निकाल के ला सकते हैं। सो अगर आप मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी की बात करें, तो व्हाट डज इट डू? तो मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी एज द नेम सजेस्ट, ये कहीं ना कहीं आपके जो डीएनएज हैं, जो न्यूक्लियाइज हैं, उन सब की स्टडी से रिलेटेड है। एंड वी ऑल नो दिस वेरी वेल कि आपके RNAs और DNAs, हाउ इम्पॉर्टेंट रोल दे प्ले इन डिफाइनिंग और इन नोइंग अबाउट सर्टन डिजीजेस, कि वो पैटर्न कैसा होगा, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम देयर, राइट? सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दूसरा है आपका डिजास्टर एपिडेमियोलॉजी। अब डिजास्टर एपिडेमियोलॉजी क्या देखता है? इट studies the factor that causes the disaster, and it is also concerned with the study to find the mechanism in order to reduce the negative health effect of that disaster. तो this disaster can be anything, ये आपका natural भी हो सकता है, man made भी हो सकता है। You must be knowing कि natural disaster हो या man made disaster हो, दोनों ही केसेस में आपको कहीं ना कहीं हेल्थ पे इम्पैक्ट तो देखने को मिलता ही है। अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल्स ले लें इन विच देयर वॉज सम केमिकल लीकेज, जो कि आपके मैन मेड डिज़ास्टर के अंदर आएगा, उसके अंदर भी ऑफ कोर्स ह्यूमन को तो नुकसान होता ही है। अगर फॉरेस्ट फायर भी हो गई तो उसमें भी ह्यूमन को नुकसान होता है, ह्यूमन को नुकसान, और इन जनरल यू कैन से कोई ना कोई डिजीज़ या हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है।
और वहीं अगर फ्लड हो गया या टाइफून्स, ह्यूरिकन्स, cyclones, anything, it has like the relation with the human being itself. So that is what is being studied under your disaster epidemiology. Then your forensic epidemiology, अब again forensic इसके नाम में ही लगा है, तो ये आपके बहुत सारे अलग अलग जो फॉरेंसिक मेडिसिन होते हैं या जो ब्रांच आप कह सकते हैं जो फॉरेंसिक ब्रांच होती है उसके साथ मिलके एक फॉर्मुलेशन बनता है दैट इज बीइंग स्टडीड अंडर दिस फॉरेंसिक एपिडेमियोलॉजी एंड इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन्स about the type and the quantity of the causal association between an antecedent harmful exposure and an injury of disease outcome in both the population and the individual. So that means it helps in the investigating part of it. मतलब ओवरऑल आप इसको एक फॉरेंसिक ब्रांच की एक एस्पेक्ट की तरह समझ सकते हैं बिकॉज फॉरेंसिक ब्रांच विदाउट एपिडेमियोलॉजी कहीं ना कहीं अपने आप में इज नॉट लाइक कंप्लीट इन इटसेल्फ, राइट. देन योर एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी. अब ये एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी एनवायरमेंट के वजह से जो भी आपके हेल्थ पर अलग अलग इम्पैक्ट्स आ सकते हैं उसके बारे में स्टडी करता है. एंड देन योर ट्रैवल एपिडेमियोलॉजी. ट्रैवल एपिडेमियोलॉजी अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो कि कैसे एल्टीट्यूड से इम्पैक्ट आता है, कैसे हॉट या कोल्ड कंडीशंस में भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, तो ऑल दोज थिंग्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर दिस ट्रैवल एपिडेमियोलॉजी. आपने ये भी देखा होगा व्हेन यू गो एट द हाई एल्टीट्यूड यू माइट फेस सम काइंड ऑफ एन नोजिया और वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती है. तो अगेन दैट इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एज वेल. तो ये जो सारी चीज़ें हैं इट कैन बी स्टडीड अंडर दिस, चाहे वो आपकी फ्रॉस्ट बाइट हो, स्नो ब्लाइंडनेस, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रेस, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, वो आप इसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं. देन योर ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी. हमने शुरुआत में ही बात करी कि बहुत सारे ऐसे हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं दैट कम्स अलॉन्ग विद दी work culture or work environment, right? So that can be studied under this occupational epidemiology, right? So these are the things that you can include in writing about the branches. और अपनी तरफ से भी आप थोड़ी सी कोशिश करें कि कैसे ये सारी ब्रांचेस को आप एंथ्रोपोलॉजी के साथ जोड़ के देख सकते हैं बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, राइट. हमने फॉरेंसिक को एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा हुआ है, डिजास्टर थोड़ा बहुत देखा है, मॉलिक्यूलर भी देखा है, तो आप इसको इंटरलिंक करने की कोशिश करें बिकॉज आपके माइंड में अगर चर्निंग नहीं होगी तो विच एवर लाइक लेक्चर और विच एवर द बुक और विच एवर द कोचिंग दैट यू टेक दैट्स नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल. That's the very blunt truth, right? Now talking about the historical evolution of the epidemiology, तो it can be taken to the Hippocrates. ये एक Greek physician थे basically, and we need to admire this fact कि जिस टाइम पे Hippocrates exist करते थे at that point of time, आप जो मेडिकल फील्ड में आज के जितनी जो भी डेवलपमेंट्स देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स देखते हैं, वो कुछ भी नहीं थे. इवन माइक्रोस्कोप्स भी अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे. So whatever the observation that he made regarding the epidemiology was on the observational facts also. और एक और बात आपको ये याद रखनी है कि जब जिस टाइम की हम ये बात कर रहे हैं उस टाइम तक इवन आपके अर्ली टू मिड 1800 तक जो एक कंसेप्शन है अमंग दी मेडिकल फ्रेटर्निटी और कम्युनिटी, जो उस टाइम के डॉक्टर्स हुआ करते थे, उनका ये मानना था कि everything that is happening, something bad related to some kind of a disease or anything that is happening, it's because of some kind of an evil spirit. ठीक है, जैसे आज भी आपने सुना हो कि आबो हवा में कुछ गड़बड़ हो गई है, उसकी वजह से बीमार हो गए और ऐसी चीज़ें होगी, बट वी ऑल नो एट दी कोर कि इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, कोई पैथोजन की वजह से हुआ होगा, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, राइट. बट उस टाइम पे यही वाली जो आपकी कह सकते हो धारणा थी वो एग्जिस्ट करती थी. सो देन हिप्पोक्रेटिस सेड कि ये जो भी डिजीजेज या जो भी लोगों को परेशानियाँ या दिक्कत हो रही हैं, बिकॉज उस समय तो ऐसे डिजीज़ के क्लासिफिकेशंस और ये भी नहीं किए गए थे, तो ये भी सारी जो भी जितनी चीज़ें हो रही हैं इट कैन बी करेक्टेड या और रेक्टिफाइड इफ़ यू हैव लाइक गुड फूड. आप अपना जो मेंटल वेलबींग है वो देखो, आप फिजिकल वेलबींग देखो, तो आप सही रहोगे. ठीक है, इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई. ये इविल स्पिरिट वाला जो कंसेप्ट था ये उन्होंने पूरी तरह से आप कह सकते हो नकार दिया था, राइट. देन कुछ और जो फेमस साइंटिस्ट है और जो फेमस बायोलॉजिस्ट है बेसिकली इफ आई हैव टू से, और डॉक्टर्स जो भी बोल सकते हैं आप, दे
लाइक मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस, सो आप उसमें लिख सकते हैं जॉन ग्रॉन्ट. सो जॉन ग्रॉन्ट ने 1662 इस टाइम में इपिडेमियोलॉजी पर काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे, स्टडीज़ किए थे. इन्होंने भी अगेन ऑब्जर्वेशन किए और किसी डिजीज़ का क्या कारण हो सकता है उस पर लोगों को बताया था. बट अगेन दैट वॉज नॉट एनफ फॉर मैनी ऑफ द थिंग्स, बिकॉज उसके बाद एक बहुत ही ब्रेक थ्रू स्टडी की गई थी बाय दी जॉन स्नो. सो जॉन स्नो ने किस चीज़ पे स्टडी करी थी? ही स्टडी बेसिकली दी कॉलेरा आउटब्रेक वेयर इन लंडन. और ये कब की बात हम कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी 1800. और ये जब हम जॉन ग्रॉन्ट की बात करें तो ही डिड नॉट लाइक बेसिकली स्टडी कॉलेरा. सब लोगों ने अलग अलग स्टडीज़ करी थी. बट अगर मैं आपको जॉन स्नो की काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ऑल दो, क्योंकि जॉन स्नो व्हेन ही स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट की कॉलेरा, आज हम सभी को पता है लाइक व्हाई इट हैपेंस. कॉलेरा हैपेंस बिकॉज कि आप जो भी पानी पी रहे हो वो कहीं ना कहीं गंदा है, वो इन्फेक्टेड है पानी, एंड अल्टीमेटली आप अगर आप उस पानी से खाना बना रहे हो और सारी चीज़ें कर रहे हो तो उससे आपको कॉलेरा हो सकता है. तो यू बेसिकली नीड टू मेंटेन गुड हाइजीन, प्रॉपर सैनिटेशन, देन यू वोंट बी एबल टू कैच दी कॉलेरा. और कॉलेरा जब जिस टाइम की हम बात करें उस टाइम पे अगर किसी को कॉलेरा हो जाता था तो देयर इज़ लाइक 50-60% चांसेस कि वो पर्सन तो नहीं बचेगा, बिकॉज कॉलेरा के अंदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, और उस टाइम पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जिससे लोगों को बचाया जा सके. So John Snow at that point of time, he was some kind of an assistant to another doctor. He was not a doctor in himself. इन्होंने स्टडी शुरू करी, इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो टू कीप दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो बेसिकली इन्होंने ये देखा जहाँ कहीं भी कॉलेरा से इनको कोई डेथ दिखती थी, ही स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट इट कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या खाया था, क्या पिया था. इन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ करी, रात रात भर जाग के इन्होंने लोगों से बातचीत करी और जो इनके ऑब्जर्वेशंस थे उनको एनालाइज किया. सो अल्टीमेटली ही फाउंड इट आउट कि लंदन में देयर वॉज अ स्ट्रीट, ऑन दैट स्ट्रीट देयर वॉज अ हैंड पंप. हैंड पंप हम सभी ने देखा हुआ होगा, लाइक हैंड पंप से आप पानी निकाल सकते हो, राइट. हैंड पंप का एक पाइप आपका ज़मीन के नीचे होता है और बाकी ऊपर होता है जिससे आप पानी निकाल सकते हो. और जब हम बात करें जिस टाइम की लंदन की, उस टाइम पे जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ या जो ड्रेनेज फैसिलिटीज़ आप देखते हो आज के डेट में इन लंदन लाइक और एनीवेयर एल्स, वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी. इसकी वजह से क्या होता था, जो पानी का कंटेमिनेशन है दैट वाज वेरी इजी टू हैपन. लेकिन लोगों ने इस सारी चीज़ों को उतना ध्यान नहीं दिया. बट व्हेन जॉन स्नो स्टार्टेड स्टडिंग, तो उन्होंने देखा कि देयर वाज अ हैंड पंप, और इस हैंड पंप से जो जो पानी पी रहे थे लोग, दे वर फॉलिंग सिक. देन ही फर्दर इंक्वायर्ड, तो उनको पता चला कि इस हैंड पंप का कंटेमिनेशन बगल के किसी घर से हो रहा है. तो इस घर में जो भी इनके मतलब बच्चे थे, लाइक देयर वाज अ चाइल्ड इन दिस हाउस, सो दैट चाइल्ड वॉज हैविंग डायरिया, और उसके जो नैपीज थे वो धोए गए थे, और अल्टीमेटली जो पानी था वो सीपेज के द्वारा फिर इस वाले जो हैंडपम्प थे इसमें जाके कंटेमिनेट हो गया था. एंड बिकॉज ऑफ दैट कंटेमिनेशन, जिन लोगों ने भी इस हैंडपम्प का पानी पिया उनको कॉलेरा हो गया, एंड अल्टीमेटली वो बीमार पड़ गए. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिक्वेस्ट की अथॉरिटीज़ से, और अथॉरिटीज़ ने इस हैंडपम्प का हैंडल ही तोड़ दिया. अब हैंडल तोड़ दिया तो लोग पानी नहीं पियेंगे वहाँ से. और उसके वजह से क्या हुआ, देन ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि जो नंबर ऑफ कॉलेरा केसेस थे वो धीरे धीरे कम होते गए, राइट. तो बेसिकली जो आपका कर्व था वो डाउन चला गया. देन फर्दर विद मोर स्टडीज ही कंक्लूडेड कि क्या रीज़न हो सकता है. तो डिड यू अंडरस्टूड कि इपिडेमियोलॉजिकल ने उन्होंने क्या देखा, व्हाट वाई हाउ, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टडी करी और पता लगाया कि कॉलेरा क्यों होता है. फर्दर और भी बहुत सारे स्टडीज़ हैं लाइक डॉल एंड हिल. इन्होंने स्टडीज़ करी थी कि कैसे स्मोकिंग का रिलेशन आपके रिस्पिरेटरी डिजीज़ से तो होता ही होता है, और लंग कैंसर से भी होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से भी होता है. ये सारी स्टडीज़ क्या थी उतना हमें अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट येस यू शुड नो एटलीस्ट द नेम और द स्टडीज़ दैट दे हैव डन, राइट. और ये स्टडीज़ मोस्टली कैसे की जाती थी, कुछ ग्रुप को स्टडी किया जाता था, उनके प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखा जाता था, देखा जाता था, उन सारे बेसिस पे ये कुछ कंक्लूजन निकाल के देते थे. अनदर स्टडी दैट यू कैन कोट इज related to the smallpox. So basically we all know कि smallpox eradication हो चुका है from the entire world. अभी ये smallpox eradication इंडिया में भी like around 1970s तो कर दिया गया था. So what was the reason? So basically with the help of this epidemiological methods of study, the doctors and the scientific community were able to conclude कि अगर आप पूरी जो population है उनको vaccinate कर देते हो against the smallpox, then you will be able to eliminate it. और यही हुआ.
पूरी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है दैट वाज अंडर द रडार, उनको वैक्सीनेट किया गया और वैक्सीनेशन के बाद आज हमें स्मॉल पॉक्स का कोई भी केस देखने को नहीं मिलता है. तो दीज आर सम ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स और द एवोल्यूशन ऑफ इपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़. बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ हिपोक्रेट्स की और उसके बाद जॉन ग्रॉन्ट या जॉन स्नो की, तो इन टाइम तक तो आपके माइक्रोस्कोप्स भी अवेलेबल नहीं थे. फिर धीरे धीरे माइक्रोस्कोप्स आए और भी फर्दर सोफिस्टिकेटेड मेथड्स ऑफ स्टडी आई, तो काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ. और उसी का नतीजा आज ये है कि आज की डेट में आप मॉलिक्यूलर और जेनेटिक इपिडेमियोलॉजीज भी देखते हैं. तो दैट वी कैटेगराइज एज अंडर द मॉडर्न इपिडेमियोलॉजी, राइट. तो ये मॉडर्न इपिडेमियोलॉजी कुछ नहीं है, बस जो आपके चीज़ें इवॉल्व हुई, जो एक नया डिसिप्लिन बना और सोफिस्टिकेटेड डिसिप्लिन बना, हम उसी को मॉडर्न इपिडेमियोलॉजी कहते हैं, राइट. And this also uses various quantitative methods also in studying the diseases pattern, right. अब आप यहाँ objectives की अगर बात करें तो objectives like I hope आप summarize कर पाएंगे कि क्या क्या objectives हो सकते हैं, at least in your own words. Try to do that. अदरवाइज ये सारी चीज़ें तो यहाँ लिखी हुई है, देयर इज़ नथिंग टू समझाओ, मतलब आपको समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. बट प्लीज़ ट्राई एंड फिगर इट आउट कि आपने एपिडेमियोलॉजी सही से समझी है कि नहीं, राइट. Then there is another term that you might come across, biostatistics. तो अब बायोस्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे क्यों बात करें, बिकॉज हमने अभी जस्ट मॉडर्न इपिडेमियोलॉजी देखा है. तो मॉडर्न इपिडेमियोलॉजी में हम देखा है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स भी वो यूज़ करते हैं, राइट. सो आप इपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें तो इपिडेमियोलॉजी जो जनरल इपिडेमियोलॉजी होती है अलॉन्ग विद द बायोस्टैटिस्टिक्स, और डेटा साइंस का भी आप कुछ पार्ट ले सकते हैं, बिकॉज आज के डेट में तो बहुत सारे टूल्स भी है जो यूज़ किए जाते हैं इन एनालाइजिंग वेरियस डेटाज, चाहे वो आपके SPSS हो, चाहे R हो, SQL हो, Python, any of the things, right. So if you see the confluence of all these things, that gives you like what can be the core of your modern epidemiology, right. तो ये बताने का बस मतलब यही है, बिकॉज कि आप कुछ नए टर्म्स देखिए तो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज विद इट कि ये क्या है कैसा है. तो बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली, अगर आप बायो और स्टैटिस्टिक्स दोनों वर्ड को अलग अलग कर ले, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि ये बायोलॉजिकल टॉपिक्स को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करता है और एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट देने में हेल्प करता है. और अगर आप कंपेयर करें इपिडेमियोलॉजिस्ट और बायोस्टैटिस्टिशियन को, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. ऑल्दो दे कॉन्फ्लुएंस एट सर्टन पॉइंट, बट या अपने अपने इनके फील्ड ऑफ और वे ऑफ स्टडी, बेसिकली फील्ड तो अलग बात हो जाएगी, वे ऑफ स्टडीज़ काफ़ी इनके अलग अलग है. ये काफ़ी ब्रॉड बेस्ड होते हैं और इनका फोकस आपके मेथड्स पे बहुत ज़्यादा होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे ज़्यादा होता है. वहीं इपिडेमियोलॉजी का ऐसा कुछ स्कोप नहीं होता है, राइट. बट दे कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम द बायोस्टैटिस्टिशियन, जिसके हेल्प से वो अपनी एक होलिस्टिक स्टडी कर सकते हैं. बिकॉज एज वी ऑलरेडी टोल्ड इन द बिगिनिंग कि इपिडेमियोलॉजी अपने आप में ही एक बहुत होलिस्टिक साइंस है, जो कि अदर सब्जेक्ट्स का भी एक कन्फ्लुएंस. Next, we need to understand about various approaches to study epidemiological. Because see, in the beginning I told you that there are certain designs and patterns that is being followed in studying the epidemiology. अब ये कौन कौन से तरीके होते हैं, बेसिकली अप्रोचेज होते हैं. सो दिस कैन बी डिस्क्रिप्टिव एंड द एनालिटिक. अब ये डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी अलग अलग स्टडी फॉर्म्स और डिज़ाइंस होते हैं, वैसे ही एनालिटिक के अंदर भी अलग अलग डिज़ाइंस और फॉर्म्स होते हैं. सो बेसिकली अगर ओवरऑल आप बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ इन स्टडीज़ इज़ बीइंग डन थ्रू डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें बेसिकली आप पैटर्न्स एनालाइज करते हैं. एंड यहाँ पे आपका जो फोकस है वो पर्सन, प्लेस और टाइम पे होता है, दैट इज़ हु, वेयर एंड व्हेन पर ज़्यादा फोकस होता है. एंड इट यूजेस रिलेटिवली एक्सेसिबल डेटाज एंड यूज फॉर प्रोग्राम प्लानिंग, जनरेटिंग हाइपोथेसिस, सजेस्टिंग आइडियाज़ फॉर फ्यूचर स्टडीज़. वहीं एनालिटिक जो है ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इन टर्म्स ऑफ इन कंपेयर टू दी डिस्क्रिप्टिव वन, एंड इट यूजेस द टेस्ट हाइपोथेसिस एंड रिक्वायर मोर रिसोर्सेज. अगर किसी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट मोर फर्दर. So see, here is your descriptive epidemiology. So it provides the information about the distribution of health outcomes by the population type, age, geography and over time sources. That is your who, where and when. For the descriptive data may include routine monitoring like the registration at the time of birth and death and the hospital and the clinical record. आपने ये देखा होगा अक्सर like the government studies those data कि birth rate क्या है, death rate क्या है, और टाइम टाइम पे इन डेटास को एनालाइज किया जाता है
इवन द मोर्टैलिटी रेट, द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, और भी बहुत सारे ऐसे डेटाज होते हैं जो टाइम टू टाइम पब्लिश होते रहते हैं, एंड इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फॉर्मिंग द पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि देयर इज अ सर्टन इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इज़ वेरी हाई इन सर्टन स्टेट्स, तो government will try to intervene into it. So that is the major purpose of your descriptive epidemiology. अगर आप बोले कि उनकी applications क्या हो सकती है, epidemiology के अंदर आप mostly focus करते हो on the how. That is, it aims to investigate which factor may be responsible for increasing or decreasing certain risk. तो ये तो बात होगी आपके approaches की. Now I told you approaches के अंदर आपके आएंगे designs. So if you see, डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके ये 3 डिज़ाइंस होंगे, और एनालिटिकल के अंदर आप ये 2 कैटेगराइजेशन करेंगे, और उन कैटेगराइजेशंस के अंदर आपको ये डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे. तो विल डिस्कस दिस डिज़ाइंस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दीज आर नॉट इन दी सेम ऑर्डर, मतलब यहाँ पे जो मैंने ये सारे एक्सप्लेन की है, दे आर नॉट इन सेम ऑर्डर, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा. तो अगर हम सबसे पहले इकोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करें, दैट इज़ योर डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन है. अब इसके अंदर क्या होता है, तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी कोरिलेशनल स्टडीज़, राइट. और इसमें आप ग्रुप को स्टडी करते हो, ना कि इंडिविजुअल को. ये हो गई पहली बात. दूसरी ये कि आप इसके अंदर एक पॉपुलेशन को कंपेयर करते हो एट सेम टाइम. टाइम आपका सेम है, बट जोग्राफिकल लोकेशंस अलग अलग है, राइट. या तो आपकी जोग्राफिकल लोकेशन सेम है और टाइम अलग अलग है. अब ये किन केसेस में हो सकता है, ये आप उन केसेस में कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया, दैट इज़ अबाउट द कैंसर मोर्टैलिटी इन एरिया. जहाँ पे हजार्डस वेस्ट साइट हो, वहीं आप दूसरा कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पे वेस्ट साइट ना हो, बिकॉज वी नो बेसल कन्वेंशन में भी आपने देखा हुआ है दैट देयर आर वेरियस हजार्डस मटेरियल्स दैट इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ. तो ऐसा भी हो सकता है दैट द कैंसर काउजिंग एलिमेंट्स, क्योंकि कैंसर के बहुत सारे तरीके हो, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. हमने देखा भी लंग कैंसर क्यों होता है, रेडॉन, एस्बेस्टस, ये सारे रीजंस हो सकते हैं. तो हो सकता है देयर इज़ सम पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे आपको हजार्डस वेस्ट देखने को मिले, और वहीं दूसरी लोकेशन पे आपको हजार्डस वेस्ट देखने को ना मिले. आप इन दोनों को सेम टाइम पे कंपेयर कर सकते हो, लाइक सेम टाइम इन मीन टू से कि अगर आप मोर्टैलिटी देखना चाहते हो, लाइक अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आप उसमें कंपेयर कर सकते हो कि क्या इम्पैक्ट होता है. दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग लाइक वेदर दिस hazardous waste has any kind of an impact on the cancer mortality or not. So this is one case. वहीं दूसरी तरफ आप ये देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में जहाँ पे हजार्डस वेस्ट है, उसमें आप 2 अलग अलग टाइम फ्रेम में कंपैरिजन कर सकते हो. तो ये हो गई आपकी इकोलॉजिकल स्टडीज़. दूसरा है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़. अगर आप क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ को देखें तो ये आपके ऑब्जर्वेशनल के अंदर आती है. रिमेंबर आई टोल्ड यू कि सेम ऑर्डर में नहीं है, आप एक बार मैच कर सकते हैं अगर चाहे तो. अदरवाइज आप ये जितने भी हम बता रहे हैं अभी, इनको ध्यान से देख लें, और बाद में आप जब उसको लिखेंगे तो आप खुद ब खुद याद आ जाएगा. जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ की बात करते हैं, तो अब इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर जो आप स्टडी करते हो, दैट कैन हेल्प यू इन डिफाइनिंग कि एक, या जो भी आप ग्रुप को कंपेयर कर रहे हो, उसमें किसी एक पर्टिकुलर जो भी आप पैरामीटर्स देखना चाहते हो, लाइक आप कोई एक डिजीज़ प्रेवेलेंस देखना चाहते हो, या जैसे यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है, आप कोई रेस्पिरेटरी इलनेस को देखना चाहते हो, और आपने उस रेस्पिरेटरी इलनेस को देखने के लिए क्या किया, आपने कंपेयर करना शुरू किया. अब आप किसको कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो आप जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप को और जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स या डिजीजेस और पैरामीटर्स को स्टडी करना चाहते हैं, आप उसी बेसिस पे कंपेयर करोगे. तो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ एन वेरी सिंपल वन, बिकॉज एज यू कैन सी इट इज़ मोस्टली ऑब्जर्वेशनल. आप ऑब्जर्व करके देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जैसे यहाँ एग्जांपल है आपके फर्नीचर मार्केट का, तो इस फर्नीचर मार्केट में आप देखना चाहते हो कि क्या इस फर्नीचर मार्केट में किसी को एक सर्टन काइंड ऑफ एन डिजीज़ है या डिसऑर्डर है दैट कैन बी रिलेटेड टू लाइक वन ऑफ द केमिकल्स यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट. ठीक है, कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर मार्केट में कुछ एक केमिकल का यूज़ किया जा रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स पे आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आप ये देखना चाहते हो तो what you need to compare, you just need to compare the people who's working out there in that market. ठीक है, तो that is about this cross sectional studies. कंट्रोल स्टडीज़, केस कंट्रोल स्टडीज़, अब ये किसके अंदर आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केस कंट्रोल भी आपके ऑब्जर्वेशनल के अंदर ही आता है. और इस केस कंट्रोल स्टडीज़ को आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ भी कहते हैं. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लाइक सपोज दिस 2 चाइल्ड, एंड दीज 2 चाइल्ड्स, लाइक वन ऑफ देम इज़ वेरी नॉटी. ठीक है,
नॉटी भी है, या आप बोल सकते हैं कि ये बहुत बदमाश है, और ये जो दूसरा है दैट इज़ अ वेरी गुड वन, राइट. सो इफ़ द पर्सन वांटेड टू, वैसे तो हम इपिडेमियोलॉजी की बात करें, बट ये थोड़ा सा हट के मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए. तो अब मान लीजिए द समबडी हु वांटेड टू स्टडी बोथ ऑफ देम, कि लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी नॉटी एंड वेरी बदमाश ऑल्सो, लाइक वाई दिस इज सो, और ये है, ये बहुत शांत है. तो द पर्सन हु वांटेड टू फाइंड इट आउट, दे माइट ट्राई एंड लुक बैकवर्ड कि क्या इसके साथ जो भी इसकी अपब्रिंगिंग्स है उसमें क्या क्या चीज़ें की गई थी जो इसके साथ नहीं की गई हैं, एंड दैट माइट हैव सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन इट, राइट. बिकॉज हम देखते हैं बच्चों को आप जैसा मोल्ड करेंगे वो उसी तरीके के होते हैं. तो दे माइट ट्राई एंड फाइंड इट आउट रेट्रोस्पेक्टिवली. वही चीज़ यहाँ पे भी की जा रही है. और अगर आप डिजीज टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल कैंसर का लेके समझ सकते हैं. इफ़ द इपिडेमियोलॉजिस्ट वांटेड टू स्टडी और वांटेड टू नो कि क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकता है ऑफ लाइक सर्टेन कैंसर, तो ही माइट ट्राइड एंड लुक अराउंड कि एक पर्सन ए है जिसको कैंसर है, और एक पर्सन बी है हुज लाइक हैविंग दी सिमिलर अपब्रिंगिंग, एवरीथिंग इज सिमिलर, एथनिसिटी वगैरह सब कुछ सेम है, एक जैसे जगह पे वो काम करते हैं. मतलब इमेजिन, वैसे तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ होना थोड़ा मुश्किल है, बट मान के चलते हैं कि ये दोनों बिल्कुल भी सिमिलर है, बट इसको कैंसर है, इसको नहीं है. तो देन इन दैट केस द डर्मेटोलॉजिस्ट माइट ट्राई टू फाइंड इट आउट कि क्या रीज़न हो सकते हैं, ऐसे कौन से प्रायर एक्सपोजर्स थे जिसकी वजह से जो पर्सन ए है ही इज़ हैविंग कैंसर बट द पर्सन बी इज़ नॉट हैविंग इट, राइट. सो दिस इज़ अबाउट योर केस कंट्रोल स्टडीज़. इन ये कोहर्ट स्टडीज़, अब ये कोहर्ट स्टडीज़ किसके अंदर आते हैं, सो यू कैन सी इट इज़ ऑल्सो योर पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल वन. सो कोहर्ट स्टडीज़ के अंदर आप अगेन इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं. सपोज लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ एन डिफॉर्मिटीज दैट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द पीपल ऑफ भोपाल, ठीक है. आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा. तो there is a kind of a study that wanted to know कि इस टाइप की डिफॉर्मिटीज़ क्यों देखने को मिल रही है. तो what will the researchers or the epidemiologist will can do is they will collect some group of people who has some exposure to this gas, and there will be another group of people who do not have the exposure, right. And they will try and observe them for a period of time. और एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि दैट दीज कोहॉर्ट स्टडीज़ दे आर ऑब्जर्वेशनल एंड नॉट एक्सपेरिमेंटल. मतलब ये नहीं पता लगाते कि एक्सपोजर है तो कितना है, कैसा है, उसका क्या असर आएगा, ये सारी चीज़ें नहीं. बस ये कंपेयर करके देखना चाह रहे हैं कि जिनको एक्सपोजर हुआ था क्या डिफॉर्मिटीज़ बस उनमें ही देखने को मिल रही है, या फिर जिनको एक्सपोजर नहीं हो रखा था उनमें भी इस टाइप की डिफॉर्मिटीज़ है. और अगर बस ऐसा पता लगता है कि जिनको एक्सपोजर था उस केमिकल का उनमें ही डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल रही है, सो दैट मीन्स दैट केमिकल इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिफॉर्मिटीज़ एंड नॉट एनीथिंग एल्स. तो इस तरह के कंपेरिजन्स किए जाते हैं. तो दीज आर लाइक वेरी पिकुलियर केसेस. सो एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट दे माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड इट आउट कि कहाँ पे कौन सी स्टडीज़ और डिज़ाइन अप्लाई करना है. फॉर अस एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट टू फॉर द यूपीएससी हमें उतना डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है. इंटरवेंशन स्टडीज़, अब ये इंटरवेंशन स्टडीज़ क्या होते हैं पहले तो ये देख लेते हैं कि किसके अंदर आते हैं. तो दे आर लाइक द पार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है. तो इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक तो रैंडमाइज कंट्रोल होता है और एक कम्युनिटी ट्रायल्स होता है. तो हम दोनों को इकट्ठे ही पढ़ेंगे बिकॉज हम उतना डीप डाइव इसके अंदर नहीं कर रहे थे, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, राइट. सो इंटरवेंशन स्टडीज़ बेसिकली क्या होती है, तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल भी वो होती है ये, एंड इसके अंदर आप फाइंड आउट करते हो टू द रीज़न एग्जैक्टली फॉर सर्टन रिस्क और द आउटकम. अब मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए दैट देयर इज़ अ सर्टन पॉपुलेशन, और ये सर्टन पॉपुलेशन लाइक हार्ट स्ट्रोक के रिस्क पे है, ठीक है. ये हार्ट स्ट्रोक के रिस्क पे है. एंड आपको एक चीज़ पता होगा कि हार्ट स्ट्रोक को जब कभी भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो एस्पिरिन दी जाती है बिकॉज एस्पिरिन हेल्प्स इन थिनिंग द ब्लड, राइट. So don't take it as an advice, but I just read it, that is why I'm telling you, ठीक है. So aspirin is taken as like blood thinner, और stroke आने का पर आप दे सकते हैं तो person will be able to recover, right. So that is one thing, that is kind of a first aid that you can say. तो अब क्या किया जाता है, there is a like a group which is given the aspirin,
और दूसरा ग्रुप है उसको प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो आपको पता ही होगा, मतलब उनको लगता है कि दे हैव टेकन द एस्पिरिन, उनको बताया नहीं जाता। एंड देन इट इज़ ऑब्जर्व विद अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वेदर द पर्सन हु हैज़ टेकन द एस्पिरिन और वेदर द वन हु हैज़ टेकन द प्लेसिबो, क्या हार्ट स्ट्रोक का रिस्क किस में रहता है या कौन कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सारी स्टडीज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंटरवेंशन स्टडीज़। और भी इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और बहुत डेप्थ भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिटी ट्रायल्स होते हैं और रैंडमाइज ट्रायल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और मोस्टली आपको इस टाइप के इंटरवेंशन स्टडीज़ देखने को तभी भी मिलेंगे व्हेन देयर इज़ अ वैक्सीन ट्रायल गोइंग ऑन। आपने वैक्सीन ट्रायल अभी जो देखा, नॉट देखा मतलब जो वैक्सीन ट्रायल्स चल रही हैं फॉर द कोविड-19 वैक्सीन, उसके अंदर मोस्टली इन टाइप के इंटरवेंशन स्टडीज़ किए गए, जहाँ पे एक ग्रुप को जो वैक्सीन है वो दी जाती है और दूसरे को प्लेसिबो दिया जाता है, लाइक बोथ आर एट द रिस्क ऑफ कोविड-19 एंड देन दे ट्राई एंड ऑब्जर्व कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस, राइट। और अगर आप इस हायरार्की में देखें कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द इंटरवेंशन एंड द डिटेल्स इज बीइंग गिवन, वहीं आपको डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी काफ़ी नीचे मिलेंगी, वहीं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी थोड़ी आपको हायर वर्जेस पे मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको एविडेंसेस जो एनालिसिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन पे ही ध्यान देते हो, बट यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल चीज़ें भी करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। Your next topic for discussion is the epidemiological transition. Although ये directly syllabus के अंदर mention नहीं है, although like बहुत सारी चीज़ें mention नहीं है, it's just written epidemiological anthropology, तो इसके अंदर आप क्या क्या cover कर सकते हैं, that is up to you. So that is why we need to understand ये epidemiological transition क्या है. And since you are like studying for the UPSC, I assume कि आपने human geography पढ़ा होगा और ह्यूमन जोग्राफी में आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है डोंट वरी, हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेंगे, बट जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से, फॉर देम इट विल बी क्वाइट रिलेटेबल सिंस द बिगिनिंग इटसेल्फ, राइट। सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो इट गोज़ लाइक कि जो आपके डेमोग्राफी में चेंजेस है या जो भी ट्रांजिशंस आते हैं, दे आर मोर और लेस रिलेटेड with the kind of an population or the diseases prevailing or the other socio-economical conditions. So इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके ट्रांजिशंस होते हैं इसके अंदर जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस होते हैं इसके अंदर आप फर्टिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी या डेथ हो रहे हैं उसके कॉजेज़, इन्फेंट मोर्टालिटी उनके कॉजेज़, या कोई सर्टन डिजीज़ प्रिवेलेंस है उनके कॉजेज़, इन सारी चीज़ों को आप स्टडी करते हैं फॉर लाइक स्पेसिफिक कंट्रीज और फॉर द स्पेसिफिक like sample population that you wanted to see, right? For example, a phase of development marked by a sudden increase in the population growth brought by the improved food security and innovation in the public health and medicines. जब आप demographic transition का चार्ट देखेंगे तो there you can see कि जैसे जैसे अगर हम बात करें इंडिया की ही, तो इंडिया में अलग अलग स्टेजेस आए हैं। एक स्टेज ऐसा था when there was famine, there was a high crude birth rate and even high crude death rate also. उसकी वजह से क्या था कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन काफ़ी लो थी, और फेमीन था जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा मर रहे थे, राइट। तो इसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन काफ़ी कह सकते हैं लो रही। फिर धीरे धीरे जैसे चीज़ें इम्प्रूव हुई तो जो आपके बर्थ रेट है और इवन जो डेथ रेट है वो कम होती चली गई और बर्थ रेट धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब चीज़ें और अच्छे से इम्प्रूव हुई तब आप देखेंगे एक पॉपुलेशन बूम आया जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी राइज करी। उसके बाद देयर कम्स दी अनदर पीरियड जहाँ पे लोगों को लगने लगा कि अब कम बच्चे पैदा करने चाहिए, या फिर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, इवन द लाइफ स्टाइल एवरीथिंग बिकम सो एक्सपेंसिव, पीपल वांटेड टू हैव लाइक लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो इसके कारण से भी मतलब अपने अपने अलग एजुकेशन का लेवल बढ़ा, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन करके आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक स्टीडी ग्रोथ पे आ गया। और अब हम आने वाले समय में देखेंगे जहाँ की पॉपुलेशन की अंडर ग्रोथ और आप कह सकते हैं नेगेटिव ग्रोथ फिर से शुरू हो गई है, राइट। आपने चाइना का एग्जांपल देखा, दे हैव लाइक रोल्ड बैक देयर अर्लियर पॉलिसीज ऑफ 1 चाइल्ड एंड देन 2 चाइल्ड, अब तो वो बोल रहे 3 बच्चे पैदा करो और बहुत सारी चीज़ें इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो अलग अलग ट्रांजिशंस, अलग अलग स्टेजेस और फेजेस आते रहते हैं। अब ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन कहीं ना कहीं आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के साइड बाय साइड पैरेलली
ही चलती है और पैरेलली ही समझी जाती है। बिकॉज अगर बर्थ रेट बढ़ रही है या डेथ रेट बढ़ रही है या घट रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अलग अलग कॉजेज होते हैं, राइट। और उन्हीं कॉजेज को इसके अंदर स्टडी किया जाता है। अब ये जो एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय द एपिडेमियोलॉजिस्ट नोन एज द एब्डेल ऑमरन। क्योंकि अगर आप एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के बारे में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, यू शुड राइट ऑल दीज थिंग्स कि एब्डेल ऑमरन ने ये टर्म कॉइन किया था in his paper in 1971, which described how the degenerative and the man-made diseases displaces pandemic of the infection as the primary cause of morbidity and mortality. So ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो these are like the factual information. अब एक्चुअली में एक बार हम आगे देखते हैं कि और ये होता क्या क्या है। So in this epidemiologic transition, the process by which the pattern of mortality and the disease in the population is transformed from one high mortality amongst the infant and children and the episodic famine and epidemic affecting all ages to one of the degenerative and human-made diseases that is affecting principally the elders. And it is generally believed that the epidemiological transition prior to your 20th century were closely associated with the rising standard of living, nutrition and sanitation. हमने जब कॉलेरा का जॉन स्नो वाला एग्जाम्पल लिया उसमें भी सॉ कि आज के डेट में तो कॉलेरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। जब हम 1800 की बात कर रहे थे उस टाइम पे लंदन, जो कि आज के डेट में इज़ लाइक वन ऑफ द वेरी डेवलप्ड नेशंस, वहाँ पे भी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से काफ़ी डेथ्स होते थे ड्यू टू कॉलरा, डायरिया और भी बहुत सारे रीजंस होते थे। इवन द स्मॉल पॉक्स गॉट eradicated from the world itself because of the vaccination and other improvement in the healthcare or public sector, पब्लिक हेल्थ, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हो पाई है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं और इसकी वजह से ही आपको ये राइज देखने को मिलता है। तो ये आप रीजंस में लिख सकते हैं कि क्यों इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, वाई एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हैज सो सच एंड सच कर्व्स इन सो एंड सो पीरियड्स। और अगर आप इनको समराइज करना चाहें तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस क्या क्या डिस्क्राइब करती है, किन किन पैटर्न्स को देखती है, तो दैट विल बी योर दीज थिंग्स कि पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है लाइक इन केस ऑफ जापान देयर यू कैन सी कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एल्डरली पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, राइट। और वहाँ पे आपको बच्चे मतलब कम उम्र के लोग कम देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को भी वो स्टडी करती है बिकॉज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिफाइंस ना कि वहाँ पे कौन सी डिजीज़ का बर्डन ज़्यादा होगा। अगर एल्डरली ज़्यादा है तो एल्डरली रिलेटेड डिजीजेज है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल एल्जाइमर, तो आपको एल्जाइमर के केसेस वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन इन दोनों को कंपेयर करके भी बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हो, राइट। देन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में आपके मोर्टेलिटी के पैटर्न्स देखे जाते हैं, फर्टिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड कॉजेज ऑफ डेथ। एंड नीड नॉट टू टेल यू कि इनका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। इनका यूटिलाइजेशन पॉलिसी मेकिंग में तो हो ही सकता है और मैंने आपको बताया पब्लिक हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है इसकी। अब नाउ लेट्स सी दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो दिस इज़ योर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड दिस इज़ योर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। तो अब आप एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन को अगर देखेंगे तो इनका जो स्टेज 1 है जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस देखने को मिल सकते हैं और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो डेथ रेट है वो ज़्यादा होगी। और आगे चल के धीरे धीरे जब स्टेजेस बढ़ेंगे तो उस केस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको क्रूड डेथ रेट थोड़ा सा कम हो सकता है। देन तीसरी स्टेज ऐसी आ सकती है जहाँ पे आपको मैन मेड डिजीजेस देखने को मिल सकते हैं। मैन मेड डिजीजेस बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, क्योंकि वो मैन मेड भी तो है। हम अगर चाहें तो अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकते हैं, वी वोंट बी एबल टू गेट इन टू द ट्रैप लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज और ये सारे जो भी आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। फोर्थ स्टेज में आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे डिलेड डिजेनरेटिव डिजीजेज, यानी कि विथ इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल तो यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल की वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, फॉर एग्जांपल लाइक इन टुडेज वर्ल्ड विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपने देखा कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो जिम में एक्सरसाइज कर सकते हो या आप इवन अपने घर में भी लाके
यू कैन हैव योर ट्रेडमिल एंड अदर इक्विपमेंट्स, एक्चुअली वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा, मतलब भले ही आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी हेक्टिक है, बिजी है, बट इवन दो विद सर्टन चेंजेस यू कैन इम्प्रूव अपॉन इट। और इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगी, एंड ऑफकोर्स मेडिकल एडवांसमेंट भी आज के डेट में इतने ज़्यादा है कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक कर सकते हो बहुत ईजिली, मतलब बहुत ईजिली तो नहीं बट एटलीस्ट यू कैन डू इट, राइट। सो सर्टन केसेस में आपको एडवांटेजेस भी मिल जाता है। पहले के केसेस में तो लोगों को तो मलेरिया कॉलेरा ऐसा कुछ भी हो जाता था, तो उनके बचने के चांसेस तो समझ लीजिए ना के बराबर ही होते थे, राइट। और स्टेज 5 जो अभी आप बोल सकते हैं, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शियस डिजीजेस का खतरा बढ़ गया है। कोविड-19 इज़ अ वेरी शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट। कोविड-19 ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्प्रेडिंग ऑफ दिस डिजीजेज। अगर शुरुआती दौर में ही इसको चाइना में ही रोक लिया जाता और चाइना से ये बाहर नहीं निकलता, तो शायद इन टुडेज वर्ल्ड वी ऑल मे नॉट हैव बीन सिटिंग इन इनसाइड आवर हाउसेज, मतलब ऐसे बैठना तो अपने घर के अंदर अच्छी बात है, बट इन दिस वे, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को अगर आप इनसे कंपेयर करके आप देखें कि जब हम स्टेज फर्स्ट की बात कर रहे थे, जहाँ पे आपके इन्फेक्शियस और पैरासाइटिक डिजीजेस बहुत थे, पहले के केस में तो मलेरिया भी बहुत बड़ी बात थी। आज के डेट में मलेरिया एटलीस्ट इट्स काइंड ऑफ एन नॉट दैट हाई जो पहले हुआ करता था। तो ये अगर आप स्टेजेस को धीरे धीरे कंपेयर करें, एक्सेप्ट दिस 5th स्टेज, ऑल्दो आपको 5th स्टेज तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में भी आ गया है, जो अगेन एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बट इस ग्राफ में जहाँ पे, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर आप ये वाला स्टेज देखें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, तो यहाँ पे आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं व्हेन इट वाज प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम था, जहाँ पे सैनिटेशन भी अच्छी नहीं थी। बिकॉज जब हम लंदन का एग्जाम्पल, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लंदन वाला एग्जाम्पल, तो लंदन वाला एग्जाम्पल आप लेते हैं, तो वो जब हम बात करें जिस टाइम की, उस टाइम पे लाइक इट वॉज मोस्टली प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा ओनली। थोड़ी बहुत चीज़ें बननी शुरू हुई थी, बट उतनी भी इंडस्ट्रियलाइज जगह चीज़ें नहीं थी, और जो फैसिलिटी सैनिटेशन किया हो वो कुछ ऊपर के जो लोग थे, मतलब जो प्रिविलेज लोग थे, उन तक ही सीमित थी। इट वॉज नॉट लाइक प्रिवेलेंट टू द लार्जर पॉपुलेशन। सो यू कैन बेसिकली कैटेगराइज दिस अंडर द प्री इंडस्ट्रियलाइज स्टेज ओनली। उसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेज आता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि रिसीडिंग पेंडेमिक की धीरे धीरे चीज़ें मतलब बेटर होनी शुरू हुई। अब ये सारी जगह आप स्पेनिश फ्लू और जितने भी ब्लैक डेथ और ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। और ये धीरे धीरे ये जो जितने भी पेंडेमिक्स थे वो रिसीड होने शुरू हुए, जो कि आपका ट्रांजिशनल स्टेज के अंदर आता है, दैट कैन बी अकाउंटेड टू दिस वन। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एज है, आपका इंडस्ट्रियल एज आया। इंडस्ट्रियल एज में लोगों ने अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से उनके लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से आपको मैन मेड डिजीजेस देखने को मिली। वहीं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में और भी ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजीज़ आई और साइंस ने भी बहुत तरक्की की, R&D आया, तो इसके वजह से आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और यू कैन सी वेरी वेल कि किस तरह से पॉपुलेशन में भी चेंजेस आपको देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ दिस, राइट। कि यहाँ पे जब आपका ये प्री इंडस्ट्रियलाइज वाला ये वाला एरिया था, तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे थी। उसके बाद ट्रांजिशन में बिल्कुल से बूम आया, फिर ये बिल्कुल आगे चला गया। उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं, आपको इस पॉपुलेशन में भी एक डाउनवर्ड कर्व देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ लाइक यू कैन कंपेयर वेरी वेल, ठीक है। और यही वाली चीज़ आप चाहे तो यहाँ पे भी कंपेयर करके देख सकते हैं। दीज आर लाइक बोथ वन और दी सेम, बट ये मैंने दोनों आपके इसलिए लगाया कि आपको जिससे भी अच्छे से समझ में आता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस साउंड्स लाइक दिस लुक्स लाइक मोर गुड इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, बट ये समझाने के तरीके से ठीक है, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में ड्रॉ करना है तो आप ये वाला आराम से एग्जामिनेशन में। रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन? तो ये है कि आपकी जब मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन करेगी, द डिक्लाइन इन द मोर्टेलिटी दैट कम्स विद द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन पीरियड में जब आपको मोर्टेलिटी रेट कम देखने को मिलेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ज़्यादा लोग जिंदा होंगे और ज़्यादा लोग बचेंगे, तो दैट मीन्स कि डेमोग्राफिक जो गैप है वो कहीं ना कहीं वाइडन होगा, राइट। और इसकी वजह से बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट एंड हेंस अफेक्ट्स द डेमोग्राफिक चेंजेस बाय ब्लस्टरिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि आपके पहले बर्थ भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे और डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अब इन दोनों का गैप बढ़ गया है। सो दैट मीन्स कि आपको पॉपुलेशन यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इन वन लाइन रिलेशनशिप दैट यू कैन राइट। नाउ अगर हम इंडिया के टर्म्स में बात करें, तो हमने तो ये देख लिया बिल्कुल साइड बाई साइड पैरेलली चल रहा था। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा पेंडेमिक सिचुएशन, फैमीन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। देन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, लेकिन आपको पता है इंडिया वाज नॉट लकी इनफ
to face all those things at the relative time. कहीं ना कहीं इंडिया कुछ चीज़ों में काफ़ी पीछे रह गया. आप उसको बहुत सारे रीजंस उसके पीछे दे सकते हैं, बट हाँ, हम अभी वो रीजंस यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ कैसी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, और चीज़ें कैसी हो सकती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में पहले आ सकता था, एंड ये सारी चीज़ें. बट अब इंडिया में ये जो आपके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस है और जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डिले देखने को मिलेगा. सो दैट इज़ वाई आप इसको डिलेड मॉडल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन भी कहते हो इन केस ऑफ इंडिया. और इसके मेन रीजंस क्या क्या रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन होने के लिए आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूवमेंट होना ही होना चाहिए. जब तक वो नहीं होगा आप दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते. और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, फैसिलिटीज़, सैनिटेशन और भी अदर फिजिकल वेलबींग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. सो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक रीज़न था डिलेड मॉडल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन इन इंडिया के लिए. एंड लो लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड कल्चरल कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स वेलनेस, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन फैसिलिटीज़, एंड पुअर प्रोग्राम एंड दी साइंटिफिक नॉलेज यूज टू कंट्रोल द एपिडेमिक्स. तो ये कुछ रीजंस है. अगर आपको इंडिया स्पेसिफिक पूछा जाए कि इंडिया में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है, तो आप एक तो पहले एपिडेमियोलॉजिकल को बता सकते हैं कि वो क्या है, और इंडिया कंटेक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पे डिलेड मॉडल था बिकॉज ऑफ दीज एंड दीज रीजंस, राइट. और इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको क्या क्या देखने को मिले इंडिया के टर्म्स में अगर आप बात करें, तो यहाँ पे आपको लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अर्ली डेथ देखने को मिला. इंडिया में 67 ईयर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अभी एक दो इधर उधर बढ़ गया हुआ तो आप देख लीजिएगा, लाइक 67 to 70 साल तो होता ही है. और वहीं अगर जापान में आप देखेंगे तो वहाँ पे 80 ईयर्स है. ऑल्दो जापान के 80 ईयर्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, दैट इज़ गुड. बट हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होने के बावजूद भी आज के डेट में वहाँ पे आपको एजिंग पॉपुलेशन देखने को मिल रही है. वहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उनका, दैट इज़ नॉट देयर. और इंडिया के पास एक एडवांटेज भी है, तो यू कैन से लाइक दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन अदर वे. Then increased epidemic burden on the people and the government leads to the development of many other diseases due to the compromise with the immunity. Example, the passive TB and the active TB percentage in higher in India youth as compared to the developed nation, and the impact of growth and development of the people to the full potential. That means कि एक तो consequences ये हुआ कि हमारे delayed epidemiological transition की वजह से life expectancy लोगों की घट गई. दूसरी आपके बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिसके वजह से जो अलग अलग कंडीशंस है, चाहे वो आप टीबी को लेके बोल ले, एचआईवी को लेके बोल ले, या मलेरिया को लेके बोले, लाइक एनी ऑफ द थिंग्स, तो सारे के सारे अल्टीमेटली बॉयज डाउन टू वन थिंग कि आपने शुरुआत में चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं किया. बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न द पॉपुलेशन टुडे आर फेसिंग द consequences of it, right? So that you can write about India. And with this we have completed the 9.8 part 1. I'll come up with the next lecture very soon. Thank you so much.